Dear students, welcome you all in the fifth class of our cellular respiration. In the last class, we had studied about the respiration in aerobic condition, and today we will focus on how the energy rich molecules, particularly NADH and FADH, when synthesized during aerobic condition, in particular glycolysis or from TCA cycle, can be used for the synthesis of ATP, and that particular process by which the ATP is being generated by these energy rich molecules reducing powers, NADH or FADH2. The process is known as oxidative phosphorylation, and oxidative phosphorylation occurs. It is actually a coupled process. Actually, the energy rich molecules from these reducing powers, then they are transported to a series of molecules known as electron transport chain, and these molecules are actually present in the inner mitochondrial membrane. So we will study actually about the electron transport chain, as well as we will study about the synthesis of the ATP, which is known as oxidative phosphorylation. And these two process which I am actually the electron transport chain and oxidative phosphorylation are coupled process. They are linked together. If uncoupling occurs, uncoupling means the electrons are moving but there is no synthesis of ATP. That process is known as uncoupling. And the chemiosmotic hypothesis actually is the key hypothesis which explains how the ATPs are synthesized during aerobic condition due to flow of electrons in electron transport chain. And these electrons are what? The energy rich electrons, जो कि फूड स्टेप से धीरे धीरे अलग अलग सीक्वेंशियल स्टेप्स में हमने प्राप्त किए थे, और को एंजाइम्स खास करके NAD और FAD को हमने रिड्यूस किया था एट डिफरेंट स्टेजेस. हम देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेजेस के अंदर को एंजाइम्स रिड्यूस हुए थे. इफ़ यू टॉक अबाउट इन एरोबिक कंडीशन, हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की बात करें, तो रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रहा था. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर during the step known as during the conversion of glycerylate 3-phosphate into 1,3-biphosphoglyceric acid, the enzyme which catalyzed this reaction was actually glycerylate 3-phosphate dehydrogenase enzyme. During this step, a reducing power NaGH2 has been synthesized, or by shuttle path, by shuttle path, because this particular pathway occurs in cytoplasm. So the reducing power which is synthesized in this step is then transported to inside the mitochondria, and the transport occurs by shuttle pathways, either by malate aspartate shuttle pathway or by glycerol 3 shuttle pathway. If the NADH2 is transported by means of malate aspartate shuttle pathway, then it produces or it contributes into 3 ATPs. We will see it again in detail in when we ahead, जब हम इस lectures को आगे study करेंगे. And when suppose if this NADH is transported by means of or via glycerol 3-phosphate pathway, then it gives rise to something around 2 ATPs. So during glycolysis, pyruvate has been synthesized, and if it is aerobic condition means when oxygen is available and the mitochondria is ready to for this electron transport chain and oxidative phosphorylation and TCA cycle is possible, then pyruvate is converted into acetyl coenzyme. And acetyl coenzyme, and during this step, this conversion, which is also known as oxidation of pyruvic acid in aerobic condition, so during this step also a reducing power has been synthesized, but this reducing power is synthesized in mitochondria, so it will contribute something around 3 ATP again. Now then acetyl coenzyme goes for a TCA cycle. And in our last class we had studied that 3 reducing power in the form of NADH2 at different stages, that is from when isocitrate is converted into alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate is converted into succinyl coenzyme, and when malate is converted into oxaloacetate. So at these three stages
free reducing power NADH in the form of NADH2 has been generated. So they give rise to ATPs. That is, each NADH has capacity to form 3 ATP molecules. While when succinate is converted into fumarate, at this step one FADH2 has been synthesized. So here coenzyme FAD is reduced and it forms FADH2 in the presence of enzyme known as succinate dehydrogenase, which is also a marker enzyme of the mitochondria. But this FADH2 give rise to 2 molecules of ATP. So why there is a difference between the ATP production by NADH2 and by FADH2? We will see in detail. You will understand the concept of this particular difference. So let's start our topic, electron transport chain and oxidative phosphorylation. So let's begin with the biological oxidation. एक सिंपल हम एक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंदर जो फूड स्टफ्स है किस प्रकार से रिड्यूसिंग पावर्स जनरेट कर रहे हैं, एंड दीज रिड्यूसिंग पावर in aerobic conditions forms ATP by electron transport chain. We all know that whether it is carbohydrate or it is amino acid or fatty acids, these foodstuffs at by different stages of oxidation produces energy poor molecule like carbon dioxide and water, and the energy rich electrons and protons which are present in the foodstuff in different stages, whether it is stage 1, stage 2 or stage 3. Stage 3 is the common catabolic pathway, which is tricarboxylic acid. So they reduces coenzymes like NAD and FAD. तो वह एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था NADH2 की ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और NADH2 जो TCA साइकिल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन स्टेप से अल्टीमेटली ये रिड्यूसिंग पावर जनरेट करते हैं NADH+H. इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप इसको सिंपली NADH2 भी लिख सकते हो, है ना, और FADH2 प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सीधा हम इसको यहाँ पे NADH2 और FADH2 के वे में लिखेंगे यहाँ पर NADH2. नाउ अब यहाँ पर जो एनर्जी थी, अब वो एनर्जी यहाँ आ चुकी है. अब इस एनर्जी से हमें ATP सिंथेसिस करना है. तो ये अब कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So in the presence of oxygen, that is biological oxidation. This is actually common for all type of foodstuffs, चाहे वो फैटी एसिड्स से ऑक्सीडेशन हो अल्टीमेटली, या अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन हो, या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो. अल्टीमेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ETC, they will synthesize ATP from ADP and inorganic phosphate. So the energy in these molecules is then transformed in the energy of ATP by means of electron transport chain. So this is the simple overview of biological oxidation, and the main purpose of biological oxidation is to capture the energy present in the foodstuff and ultimately to convert this energy into ATP form, because our cells are adapted to use ATP. Our cells are adapted to utilize energy in the form of ATP only. So this is all the process behind. अब इसके बीच में इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सारी चीज़ें होती है, चाहे उनका स्टेज 1 रिएक्शन हो, स्टेज 2 रिएक्शन हो, या स्टेज 3 रिएक्शन हो. तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक्चुअली क्या है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और इसमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं, वह
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये इनका ऑक्सीडेशन होगा, NaDH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड दे विल, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लॉस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लॉस होगा तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पर सामने वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो अब एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप की रिएक्शंस चलेगी, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक्चुअली ये एक रेडॉक्स प्रोसेस जनरेट होगी। उस रेडॉक्स प्रोसेस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने से हायर रेडॉक्स पोटेंशियल वाले सब्सटेंस की तरफ मूव करेगा। तो देखते हैं व्हाट ये रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं या रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। तो इसको पहले अपन समझने की का प्रयास करते हैं। So the characteristic feature of ETC is that the redox reactions are carried out. And what is redox reaction? Is actually redox reactions are oxidation reduction reactions, oxidation and reduction process. Between two redox pairs, दो redox pairs के बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की प्रोसेस का होना ही एक्चुअली redox रिएक्शन कहलाता है। जैसे हम ETC में हम देखेंगे, जैसे सपोज NaDH2, सपोज दिस NaDH2 which is a reducing power, ठीक है, it has that energy rich electrons and energy protons। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड लूज इट्स प्रोटॉन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव। तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। इससे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास एनर्जी है एंड टू प्रोटॉन्स, दे आर बीइंग रिलीज्ड। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, उस कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो फ्लेवोप्रोटीन्स होता है, उसका जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है FMN, और ये FMN क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो FMN फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसका नाम है फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, सो इट एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू FMNH2। तो इसका तो हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। तो यहां हम कहेंगे ये दोनों रेडॉक्स पेयर हैं, जैसे NaDH2 और NAD पॉजिटिव, और इसी तरीके से FMN और FMNH2, तो इसे हम रेडॉक्स पेयर कहेंगे। ये एक रेडॉक्स पेयर हुआ, NaDH2 और NAD, और इस तरह से ये एक रेडॉक्स पेयर हुआ, रेडॉक्स पेयर। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है कि रेडॉक्स पेयर्स के बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होना। और जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है, मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर, तो इट मीन्स एक स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पर मुख्यतः स्टार्टिंग का हो रही है NaDH2, तो NaDH2 ने जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लिबरेट किए तो इस प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के पश्चात ये NAD फॉर्म में हो गया, और जब इसने इसको एक्सेप्ट किया तो इसका रिडक्शन हुआ, तो ये FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि FMN की इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी NaDH2 से अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसके पास गए। अगर सपोज NaDH2 की एफिनिटी ज़्यादा होती तो ये FMN से इलेक्ट्रॉन और ले लेता, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। ये एक मेज़र करता है किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन के प्रति कितनी आकर्षण है, वो उसका पोटेंशियल कहलाता है, जिसे हम रेडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं।
तो यहां पर FMN क्या है, एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि इसके कारण ही ये ऑक्सीडेशन संभव हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती। इसी तरह से इस NaDH2 को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी उपस्थिति में ही इसका रिडक्शन हुआ। अगर ये नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो क्लियर, तो यू शुड clear your concepts regarding what is oxidation process, what is reduction process, what is actually oxidizing agent, and which substance is called as reducing agent. So it must be clear to you. Now we will move ahead because we are talking about redox reaction. So such type of process occurs in electron transport chain, और ये प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगी ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि फाइनली ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो जाए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कि NaDH2 या FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से, जैसे NaDH2 से गया, फिर कोई A स्पीसीज है उससे फिर B में गया, B से C में गया, C से D में गया, और लास्ट में ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लेगा और वो H2O में कन्वर्ट होगा। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कई सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेंबर्स कहलाएंगे, और हर जैसे A की इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी NaDH2 से ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब B की इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी A से अधिक होगी, इसी तरह से C की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी B से अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, D की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अधिक होगी, तो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज़्यादा एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की होगी ऑक्सीजन की, इसलिए वो फाइनली रिड्यूस होता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और उसी एनर्जी से ATP सिंथेसिस होगा, उसी एनर्जी से वी विल हार्नेस एनर्जी फ्रॉम दैट एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स। तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन जो प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस प्रक्रिया के तहत लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ पर्टिकुलर स्पीसीज। सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस द एनर्जी हैज बीन हार्नेस्ड एंड इट इज यूटिलाइज्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो देखते हैं व्हाट इज रेडक्स पोटेंशियल सबसे पहले, फिर हम उस पर आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। This is the symbol used to designate redox potential, and redox potential is actually a quantitative measure of the tendency of a redox pair to lose or gain electron. For redox pair means जैसा NaDH2 and NAD, like this, आपकी समझने के साथ NaDH2 and NAD they are redox pair। इस तरह से FMN and FMNS2 they are redox pair। सो रेडक्स पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि अगर किसी, ये एक एक्चुअली किसी रेडक्स पेयर की, जैसे कि NaDH2 NAD हो यहाँ पर ले या FMN या FMNH2 ले लो, तो उस रेडक्स पेयर की इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की या इलेक्ट्रॉन छोड़ने की उसकी जो एफिनिटी है उसको दर्शाता है। ठीक है, या हम कहें रेडक्स पोटेंशियल इज मेजर ऑफ affinity of a substance
Substance here means again that redox pair for electrons. तो किसी रेडॉक्स पेयर की कितनी इलेक्ट्रॉन्स के प्रति उसका आकर्षण है, किसी का अधिक होगा, किसी का कम होगा। तो जो जिसका आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक है तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की प्रति सबसे कम है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे अगर हम पूरी रिएक्शन की बात करें तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप ये पाएंगे कि NaDH2 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऑक्सीजन के पास और बीच में कई सारे इंटरमीडिएट्स है A, B, अभी इनका अपन स्टडी करेंगे, अलग अलग नाम है। यहाँ आपकी समझ के हिसाब से सिंपली मैं इनका नाम ABCD लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो NaDH2 से चल करके A पे जाएगा, A से चल करके B पे जाएगा, B से चल करके C पे जाएगा, C से चल के D पे, और अल्टीमेटली जाएगा ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन्स भी, और फिर ये ऑक्सीजन फाइनली वाटर बनाती है। तो सर्वाधिक एफिनिटी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स की तो वो होगी ऑक्सीजन की, मैक्सिमम एफिनिटी for electrons, and the NaDH has the least affinity for electrons. It has the least affinity. चूंकि A की एफिनिटी NaDH2 से अधिक है तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए, तो इसका तो हुआ रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब चूंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो इट मीन्स इसके कारण रिडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, strongest oxidizing agent in the whole electron transport chain is oxygen, and the strongest reducing agent in the whole electron transport chain is NaDH2. It has been called as the strongest reducing agent in the whole electron transport chain. Now this is what known as redox potential, and redox potential of a particular substance can be measured by taking a reference molecule. In this case hydrogen is generally taken as reference. So we can compare the redox potential of different substance with hydrogen. If any substance has higher affinity for electrons and they take electrons from hydrogen, it means they all are called as substance having positive redox potential. Means कहना मतलब ये है कि किसी redox potential के लिए हमने क्या हाइड्रोजन को एक रेफरेंस मॉलिक्यूल की तरह लेंगे, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मतलब उनकी एफिनिटी हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा उन सब्सटेंस को, तो ऐसे सभी सब्सटेंस को हम कहेंगे पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल वाले सब्सटेंस। और ऐसे समस्त सब्सटेंसेस जिनकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन से भी कम है, इसका मतलब ये होगा कि वह ऐसे सारे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देंगे, तो उनको हम कहेंगे नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। सो लेट्स सी व्हाट इज पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एंड व्हाट इज नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। So for measuring redox potential, hydrogen is taken as, for measurement of RP, redox potential, hydrogen is taken as reference molecule. ठीक, इसका संदर्भ लिया जाता है इसको। और पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या है? पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब यह है कि अगर किसी सब्सटेंस को हम पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल कह रहे हैं, उसका रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ ये है कि वह सब्सटेंस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। और वी कैन से ऑल दो सब्सटेंसेस विच हैज हायर एफिनिटी
for electrons as compared to hydrogens are called as positive, or their redox potential is considered as positive redox potential, while all those substances which has low affinity for electrons as compared to hydrogen and they will lose electrons to hydrogen, it means all such type of substance are considered as negative redox potential. And electrons always moves or electrons always flow from a negative redox potential to पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, क्योंकि ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, वी विल स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल। वो हमेशा एक ही दिशा में मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिशा में गए वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिक्टली फॉलोज द रिडॉक्स पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज move from negative redox potential to positive redox potential, हमेशा इस डायरेक्शन में ही जाएंगे। और इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वह अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से जमे हुए हैं। So the components of electron transport chain are arranged according to their redox potential। जैसे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की शुरुआत होती है FMN से, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से। उसके बाद कोएंजाइम Q आता है, कोएंजाइम Q के बाद साइटोक्रोम B आता है, साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम C आएगा, फिर साइटोक्रोम A आएगा, देन साइटोक्रोम A3 आएगा और लास्ट में आता है ऑक्सीजन। ठीक है, हाफ ऑक्सीजन। और यहाँ से अपन चालू करें FAD से, NADH2 से ना, NADH2, क्योंकि NADH2 इलेक्ट्रॉन देगा। NADH2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और उसके एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और ये सारे FMN, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, दे ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया FMN और NADH2 की बात करें तो इसका रिडक्स पोटेंशियल NADH2 से अधिक है। इस तरह से कोएंजाइम Q का रिडॉक्स पोटेंशियल FMN से अधिक होगा। इस तरह से साइटोक्रोम का रिडॉक्स पोटेंशियल B का रिडॉक्स पोटेंशियल कोएंजाइम Q से अधिक होगा। मतलब कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन हमेशा साइटोक्रोम B में जाएगा क्योंकि इसका Rp अधिक है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन निकल करके कोएंजाइम Q के पास जाएगा, क्योंकि संभव ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो वो लो रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फिक्स है, वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। NADH2 से स्टार्ट होकर के वो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखें, इसमें NADH2 को भी इंक्लूड करेंगे और चलो ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करते हैं, तो सबसे अधिक रिडॉक्स पोटेंशियल है तो किसका होगा, ऑक्सीजन का। सो मैक्सिमम Rp किसका है, वो है ऑक्सीजन। और सबसे Rp, न्यूनतम, मिनिमम और द लीस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल वो किसका होगा, NADH2 का। NADH2 का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है E0 वो है नेगेटिव के अंदर -0.32 वोल्ट। कितना है, -0.32 वोल्ट। और FMN का इससे अधिक होगा माइनस, हो सकता है वो माइनस लगभग 15 या 20 के आसपास हो सकता है, -0.15 के आसपास। ऐसे करते करते
धीरे धीरे रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ेगा और ऑक्सीजन का जो रेडॉक्स पोटेंशियल है E0 वो समथिंग अराउंड है प्लस 0.82 वोल्ट. So you can see the difference, and therefore the electrons always flow from reduced NADH2 towards oxygen. So ये एक कॉन्सेप्ट आप समझिए रेडॉक्स पोटेंशियल का. अब हम बात करेंगे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की. सो अगर हम आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी लोकेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, और इसका मतलब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इससे लिंक्ड ही है. तो ये प्रक्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, एंड it has two different membranes. It is double membranous organelle. It has an outer membrane. एक तो outer membrane होती है जिसको हम कहेंगे outer mitochondrial membrane. It possesses inner mitochondrial membrane, कुछ इस टाइप से, और inner mitochondrial membrane में you can observe the infolding. There is folding at various places in the membrane. So due to increase in its surface area, ये होगी inner mitochondrial membrane. और इस पर काफ़ी रिसर्च की गई है inner mitochondrial membrane. The property of the inner mitochondrial membrane and outer mitochondrial membranes varies. इनमें बहुत डिफरेंस होता है. इनर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अगर देखें तो इट इज़ ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि परमिएबल है. इट इज़ परमिएबल टू मैनी सब्सटेंसेस, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, एंड इट इज़ वेरी मच सेलेक्टिवली परमिएबल, एंड इट इज़ दिस मेम्ब्रेन इज़ रिच इन प्रोटीन्स. और अगर आप इसका कंपोजिशन भी देखेंगे इन दोनों मेम्ब्रेन्स का, तो देयर इज ग्रेट वेरिएशन. कि इसका अगर आप आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन स्टडी करेंगे तो और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से कंपेयर करेंगे तो यू विल फाउंड मोर प्रोटीन कंटेंट्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं. और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, इन इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी. ये एक्चुअली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसको मैं ये येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई एक सिंगल नहीं, कई सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी. तो ये ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहां पर उपस्थित होती है. ठीक है, इट मीन्स, और यहीं पर एसोसिएटेड होता है, यहीं पर वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और साथ में ATP का सिंथेसिस होगा. क्लियर? तो हम इस चीज पर आते हैं. और ये क्या है, जो मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. दिस इज आल्सो नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस.
So suppose this is inner mitochondrial membrane. ठीक है, and NADH2 FMN coenzyme Q cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A, cytochrome A3 एंड लास्ट ऑक्सीजन है ही है, और साथ साथ आगे यहाँ पर F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, नाउ पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1, इट इज ऑल्सो नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेस या NADH का ऑक्सीडेशन होता है, और NADH को एंजाइम Q रिडक्टेस भी कहा जाता है। उसमें काफ़ी एंजाइम्स हैं, और प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे FMN, इसको फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि FMN यहाँ पर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स 2, इट इज एसोसिएटेड विद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वो FADH2 के रीऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये एक्चुअली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ही है, जो TCA का कंपोनेंट है, एंजाइम जो है TCA कंपोनेंट है और जो कि कैटलाइज करता है रिएक्शन को, जिसमें सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट किया था। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, या इसको ये भी कहा जाता है सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस भी कहा जाता है। ठीक है, और कोएंजाइम Q जो है यहाँ पर एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मीन्स इट इज अ लिपोफिलिक एंड इट कैन मूव फ्रीली इन द लिपिड मेम्ब्रेन। दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Then comes cytochrome B and cytochrome C. Cytochrome B is actually called as complex 3, and cytochrome C is again a mobile electron carrier, and it is widely studied. It is a 104 amino acid long protein, and this protein is highly conserved because it is a very important part of the electron transport chain. Conserved means कि इस 104 अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसमें वेरिएशन नहीं मिलेंगे आपको डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, बहुत ही कम वेरिएशन होगा। देन साइटोक्रोम A एंड A3 दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स 4th, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी नाम दिया जाता है, और कॉम्प्लेक्स 3 को एक्चुअली साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो ये एक तरह का, ये जो कंपोनेंट्स, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इनका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल्स के हिसाब से अरेंज्ड है। FMM का रेडॉक्स पोटेंशियल इस NADH से ज़्यादा होगा, कोएंजाइम Q का
FMN से ज़्यादा है। इस तरह से कोएंजाइम Q का रेडॉक्स पोटेंशियल FADH2 वाले से कॉम्प्लेक्स 2 से भी ज़्यादा है। फिर साइटोक्रोम B का इससे अधिक है, साइटोक्रोम C का साइटोक्रोम B से अधिक है, साइटोक्रोम A का साइटोक्रोम C से अधिक होगा, और साइटोक्रोम A3 का साइटोक्रोम A से अधिक होगा, और ऑक्सीजन का इससे भी अधिक होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 रिड्यूसिंग पावर जनरेट होते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर या किसी और दूसरी स्टेप्स के अंदर, स्टेज 2 के अंदर। तो स्टेज 2 मतलब ग्लाइकोलाइसिस हो गया। इस तरह से फैट्स की बात, फैटी एसिड की बात करें तो स्टेज 2 क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। तो वहाँ पे भी NADH2 जनरेट होते हैं। तो NADH2 का रीऑक्सीडेशन कहाँ सा होगा, वह अपने इलेक्ट्रॉन सीधे देता है FMN को, अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ देगा, FMN को, और FMN से फिर कोएंजाइम Q में जाएंगे, और कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B में जाएंगे। पर जब FADH2 का रीऑक्सीडेशन होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, सीधा कोएंजाइम Q को, अपने प्रोटॉन्स, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम B के पास। इसलिए FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वह कभी FMN पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि FMN का रेडॉक्स पोटेंशियल कोएंजाइम Q से कम होता है। जबकि NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं वो FMN से पे जाएंगे, और FMN से कोएंजाइम Q में जाएंगे। तो एक स्टेप ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे, जबकि ये कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे। क्योंकि अभी अपन देखेंगे ये 2 ATP के आसपास ही बनाते हैं, और ये 3 ATP के आसपास ही बनाते हैं। फिर साइटोक्रोम B से C के पास, C से A के पास, A से A3 के पास, और अल्टीमेटली इनके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और फिर एक होता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ नाम देते हैं इसको कई बुक्स के अंदर इसको कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी कहा जाता है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज एक्चुअली कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल। F0 तो बेस पे है, बेस जो मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उसको F0 कहेंगे, और जो मेम्ब्रेन से बाहर प्रोजेक्टेड है उसे F1 कहेंगे। दिस इज एक्चुअली F0 एंड दिस इज F1, एंड दिस एक्चुअली होल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, और यहां पर एक्चुअली ATP का सिंथेसिस होगा। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करते हैं, उसके साथ साथ कैसे ATP सिंथेसिस हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ साथ हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर कपल्ड प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ कि वह प्रक्रिया जिसे ATP का सिंथेसिस हो रहा है साथ में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज से, तो क्या रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो FMN के पास गया, फिर FMN का ऑक्सीडेशन होगा तो कोएंजाइम Q के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, रेडॉक्स प्रोसेस है। एक रेडॉक्स रिएक्शन के तहत इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण ATP का सिंथेसिस होगा। तो इसलिए हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस of synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate coupled with the transport of electron in electron transport chain. या बहुत ही सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ साथ ATP का सिंथेसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ATP का निर्माण, ATP का सिंथेसिस। दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा, जैसे कि किस तरीके से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो एक ATP जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं SLP। और एक होता है OP, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कारण होगा। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं अब सीधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ATP का सिंथेसिस। सपोज ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इधर है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से हम शो कर रहे हैं।
जैसे मान लिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ठीक है, ये तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होगी, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और ईटीसी कहाँ है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो हम ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसको अब हम एलोबरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई, ये जो पोर्शन है ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आप नोट कर लीजिएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये पोर्शन हो गया ये रहा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो होगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों के मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस मेम्ब्रेनस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं, चलो। और यहां पर ये क्या मैट्रिक्स, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अपन अब इतना सा भाग ही देख रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, उसको अपन नोट कर लेते हैं। जैसे यहां से मैं सीधा लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 डायरेक्ट लिखेंगे, मैं पूरा FMN और वो साइटोक्रोम A B C अब नहीं लिखूंगा, मैं सीधा उसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। सो ये रहा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है? FMN वाला पार्ट, चलो थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है को एंजाइम Q जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 जिसमें साइटोक्रोम B और C वाला भी पार्ट होता है, तो C भी क्या है एक्चुअली, इसको साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो C जो है इसी का भाग है, जिसको मैं थोड़ा सा अलग कर दें तो ये साइटोक्रोम C हो गया, क्योंकि ये मूव करता है हल्का सा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स 3। और फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4 जिसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, जहां पे साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होता है ना, साइटोक्रोम A और A3, और यहां पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा, और साथ में इसको यहां पर F0 F1 पार्टिकल ये इस तरीके से शो कर दे रहे हैं, ठीक है। ATP सिंथेस, थोड़ी स्पेस की लिमिटेशन है, इस कारण कंजस्टेड डायग्राम है। और यहां पर एक होगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 से क्या आएगा? FADH2 और NADH2 यहां पर आएगा। मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहां पे हटा रहा हूं इधर से, ठीक है, इसको भी रब कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इनर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स 1 which is FMN, also known as NADH coenzyme Q reductase, ठीक है, this is coenzyme Q, the mobile electron carrier. Complex 3 which is cytochrome BC complex, cytochrome C is part of complex 3, is a mobile, again a mobile electron carrier. Then complex 4 which consists of cytochrome A and cytochrome A3, and finally oxygen which जो कि reduce होगी, है ना। और complex 2 is there which is also known as FADH2 coenzyme Q reductase enzyme. NADH2 कहाँ पर आएगा? सीधा अपना NADH2 का रिऑक्सीडेशन कहाँ होगा? ये रिडॉक्स पेयर बना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी अधिक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 1 को, और ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अब ये NAD का है, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा जहां से ये प्राप्त बना है। जैसे मान लिया अगर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से फॉर एग्जांपल ये आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटोग्लूटेट, तो वहाँ NADH2 बना, तो अब वो प्रोसेस कंटिन्यू रहे, इसलिए NAD की आवश्यकता होगी, क्योंकि NAD से तो NADH2 बना, है ना। TCA साइकिल के अंदर जो एसिटिल कोएंजाइम है से
TCA साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, और मान लिया कि यहाँ पर आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और कैसे हुआ कि यहाँ पर एक NAD जो कोएंजाइम था वो रिड्यूस हुआ, तो यही NADH2 कहाँ जा रहा है, इस जगह पर जा रहा है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए और ये वापस से अपनी इस लोकेशन पर आ जाएगा ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से जहाँ से FADH2 आएगा वापस FAD वहाँ जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है ताकि कभी भी ये साइकिल्स रुक नहीं जाए। अगर NAD नहीं होगा तो साइकिल रुक जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन जरूरी होता है। और एनारोबिक कंडीशन में ही होता है कि पायरुवेट को लैक्टेट में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि NAD का प्रोडक्शन वापस से हो। तो यहां से NADH का रिडक्शन हुआ और 2 प्रोटॉन्स रन किए। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एट ए टाइम जो कि रिड्यूसिंग पावर कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन। अब ये यहां से रन करेंगे और रन करते करते अल्टीमेटली कहाँ आएंगे, ऑक्सीजन के पास, हाफ O2 के पास। तो इधर हाफ O2 प्लस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस अ पेयर ऑफ प्रोटॉन विल देन फॉर्म H2O, ठीक है, यही चीज होती है। अब यहां पर वो जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जो NADH2 से जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन में इसकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। इसकी ये एक तरह का डाउनहिल प्रोसेस है। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस। द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी इन दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू दिस। तो वो एनर्जी धीरे धीरे निकलती रहती है, और उस एनर्जी से हम, जो कि केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करती है, कैसे इस एनर्जी, जो एनर्जी धीरे धीरे लिबरेट होगी, जैसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ लिबरेट हुई 3 जगह पर एट 3 स्टेप्स, है ना, 3 स्टेप्स में सब सर्वाधिक एनर्जी रिलीज होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है NADH से लेकर के ऑक्सीजन तक, तो एक तो कॉम्प्लेक्स 1 पे, कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 1 पे सर्वाधिक एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर। एक होती है कॉम्प्लेक्स 3 पर, कॉम्प्लेक्स 3 यहां पर एनर्जी रिलीज हुई इस जगह, और एक होती है कॉम्प्लेक्स 4 पर, बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब यही एनर्जी जो रिलीज हो रही है अल्टीमेटली इसी से ATP सिंथेसिस किया जाएगा, पर वो कैसे होगा वो अपन अभी देखेंगे। बट आपको ये चीज समझनी है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो स्लो बाय स्लो एट 3 डिफरेंट स्टेप्स एनर्जी इज बीन रिलीज, एंड द एनर्जी रिलीजिंग सेंटर्स आर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो आप ये देखिएगा कि जब NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो 3 जगहों पर एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इन 3 जगहों की एनर्जी अल्टीमेटली ATP सिंथेसिस में काम आएगी। पर जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की, जहां से FADH2 का रीऑक्सीडेशन होता है, अब मैं उस पर आता हूं, ठीक है। FADH2 यहां पे हुआ, FADH2, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो FAD बना, और इससे वही अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पेयर ऑफ प्रोटॉन कहां जाएगा, कोएंजाइम Q के पास जाएगा। अब आप देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 पे जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कोएंजाइम Q का रेडॉक्स पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स 1 से अधिक है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन ऊपर इधर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रेडॉक्स पोटेंशियल इससे अधिक है। वह इलेक्ट्रॉन जो कि FADH2 से कोएंजाइम Q के पास आया, वो अब जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, क्योंकि यहां पर इसका रेडॉक्स पोटेंशियल इससे अधिक है। तो जब हम बात करेंगे FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो कितनी जगह पर एनर्जी रिलीज करा रहे हैं, तो उसको देखेंगे हम। तो ये 2 जगह पर एनर्जी रिलीज कराएंगे। अब कॉम्प्लेक्स 1 तो पे जाएगा नहीं, तो इसलिए यहां का तो एनर्जी रिलीज होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब मैं सीधी बात कर रहा हूं FADH2 की। तो जो FADH2 के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो 2 स्टेज पर ही एनर्जी को रिलीज कर पा रहे हैं, 2 जगह पर, एक तो कॉम्प्लेक्स 3 पर और एक कॉम्प्लेक्स 4 पर। तो 2 डिफरेंट स्टेजेस पर एनर्जी रिलीज हो रही है और उससे वो ATP बनेगा। पर आप फर्क देखिए, NADH2 पे 3 स्टेजेस में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। डायग्रामेटिकली अब इसको समझने का प्रयास करें कि FADH2 से जब इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास एनर्जी रिलीज हो रही है और एक कॉम्प्लेक्स 4 के पास में एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस एनर्जी से वो अल्टीमेटली एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। अब वो होगा एटीपी सिंथेसिस से। पर जब हम बात करें FADH2 की, NADH2 की, तो जब वो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 जगहों पर एनर्जी रिलीज होगी, एक तो कॉम्प्लेक्स 1 पर, कॉम्प्लेक्स 3 पर और कॉम्प्लेक्स 4 पर। तो कहने का मतलब है कि NADH2 ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ज़्यादा ATP भी बनाएगा, इसलिए हम ये माना जाता है कि एक NADH2 लगभग 3 ATP प्रोड्यूस करता है। और कई किताबों में आजकल इसे 2.5 ATP भी बताया गया, कोई सा भी लिख सकते हैं आप, 3 ATP भी लिख सकते हैं, 2.5 ATP के बराबर ऊर्जा देता है। जबकि एक FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो 2 ATP ही देगा, या फिर कुछ किताबों में इसे 1.5 ATP के आसपास भी लिखा जाता है। क्यों NADH2 ज्यादा एनर्जी दे रहा है? क्योंकि 3 जगह पर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जबकि FADH2 कम ATP क्यों बना रहा है? क्योंकि वो 2 ही जगह पर कर सकता है। क्यों करेगा 2 जगह? क्योंकि वो सीधा इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोएंजाइम Q को, वो FMN को नहीं दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही जाएगा। तो ये एक तो ये बड़ा डिफरेंस है। क्यों आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि why FADH2 contributes to 2 ATP and why NADH2 contribute to 3 ATP। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं किस तरीके से ये ATP प्रोडक्शन होता है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो एक चीज क्लियर है कि 3 स्टेप्स पर सर्वाधिक एनर्जी चेंजेस आते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 3 और कॉम्प्लेक्स 4 पर। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि यहां केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है कि किस तरीके से ATP सिंथेसिस हो रहा है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उसको समझाने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स produced either by NADH2 or produced by FADH2, the energy has been released at different stages. For example, electrons which are contributed by NADH2 at 3 different stages, that is at complex 1, complex 3 and complex 4, energy is released. And in case of FADH2, the electrons which are released from FADH2, the energy is released at complex 3 and complex 4. So the energy which has been released at these stages are then used for the active uptake of protons, and then the concentration of protons increases. Now, so this energy is being used for the active uptake of protons from mitochondrial matrix. ये mitochondrial matrix है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बहुत ही सेलेक्टिवली परमेबल है, और आप जानते हो मेम्ब्रेन आयंस के प्रति इम्परमेबल होते हैं, और ये मेम्ब्रेन आयंस के प्रति इम्परमेबल है। यह आसानी से हाइड्रोजन आयन अंदर बाहर नहीं आ सकते हैं, इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये देखा गया है कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें हाइड्रोजन की, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, और ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है और इसके बीच में मेम्ब्रेन है। सामान्यतः हाइड्रोजन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस हो, यहां से नहीं करेगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए बीच में, जो एक तरह से ट्रांसपोर्ट का मीडियम का या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करे। और ये देखा गया कि जो कंसंट्रेशन है प्रोटॉन की, वो मैट्रिक्स में कम होती है। ये एरो का मतलब ये है इस तरीके से, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये तो मैट्रिक्स, और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमेशा मैट्रिक्स के बाहर ज़्यादा है, मतलब इधर प्रोटॉन ज़्यादा मिलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में बजाय मैट्रिक्स में। क्लियर? इस एरो का मतलब ये है, एरो मतलब
ये वाला जो निशान बड़ा है इस मीन्स इधर की तरफ हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एरिया कम है तो इट मीन्स लो कंसंट्रेशन। सो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अधिक है, किसके बजाय? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यही कहता है कि ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है 3 अलग अलग स्टेजेस पर, वह एनर्जी क्या करती है? प्रोटॉन्स का एक्टिव अपटेक करती है, मतलब प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में लाया जाएगा। पर चूंकि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में अधिक है और यहाँ पर कम है, तो कम कंसंट्रेशन से जब अधिक कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस जाएगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, किसका? प्रोटॉन्स का। क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वो फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करेंगे। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कोएंजाइम Q है, और ये मान लिया इधर कॉम्प्लेक्स 2। तो हम स्टार्ट करते हैं NADH से, कि मान लिया कि NADH2 यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ NAD, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसपोर्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा कोएंजाइम Q के पास, कोएंजाइम Q से फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, तो एक तो एनर्जी रिलीज यहां पर होगी, है ना, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी एकदम से। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो प्रोटॉन्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा यहां से। तो कॉम्प्लेक्स 1 के यहां से 2 प्रोटॉन के आसपास अंदर आएंगे अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ग्रेडियंट, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल इसलिए क्योंकि प्रोटॉन अधिक यहां पर है, तो ये मेम्ब्रेन यहां से अधिक पॉजिटिव चार्ज होगी और उधर नेगेटिव चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मतलब पॉजिटिव की तरफ, और केमिकल कंसंट्रेशन मान लिया अगर यहाँ पे 100 प्रोटॉन है और यहाँ पर मान लिया कि 20 ही प्रोटॉन है, तो कंसंट्रेशन भी इसकी अधिक है, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो एक तो कॉम्प्लेक्स 1 के यहाँ से 2 प्रोटॉन आएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, फिर कोएंजाइम Q के पास गया, फिर कोएंजाइम Q से वापस कॉम्प्लेक्स 2 के पास आया, कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए साइटोक्रोम C तक आया। अब कॉम्प्लेक्स 3 पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, अब यहाँ से भी वो एनर्जी काम आएगी वापस प्रोटॉन्स को यहाँ से एक्टिव अपटेक के लिए। इधर से भी हुआ, ये वही प्रोटॉन, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो NADH2 से चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी भी रिलीज हुई है कॉम्प्लेक्स 3। तो कॉम्प्लेक्स 3 से जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी काम आती है 2 प्रोटॉन के एक्टिव अपटेक के लिए। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ध्यान रखना, है ना, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें P क्लास पंप, V क्लास पंप, F क्लास पंप और इस तरह के पंप्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पर काम हो, अब यहाँ से साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन गए, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, अब यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ से भी 2 प्रोटॉन्स कहाँ आ रहे हैं? अंदर की तरफ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली ऑक्सीजन से मिलेंगे और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्रोटॉन के साथ। तो जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन NADH2 से ऑक्सीजन तक आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से प्रोटॉन्स का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा जाता है। और लगभग एक पेयर इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन तक जाएगा तो कुल मिलाकर के 6 प्रोटॉन्स, ओवरऑल कितने हो गए? 6 प्रोटॉन्स के आसपास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। या अपन कहें कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है
उसके कारण कितना ग्रेडियंट बन रहा है, 6 प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बन रहा है। अब ये क्या हो गया, इसको कहा जाता है, ये जो 6 प्रोटॉन्स बने इसको कहा जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब इसमें अपने आप में एक ऊर्जा है। अब यहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है तो धीरे धीरे यहां पे कंसंट्रेशन अधिक है प्रोटॉन की, इधर तो वैसे ही कम है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं 6 प्रोटॉन्स, यहां से एटीपी सिंथेस जिसको F0F1 पार्टिकल कहा जा रहा है, यहां से वो अपनी डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे। कहां जाएंगे, डाउन, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन अधिक है और इधर कम है। तो जब वो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे तो यहां पर एटीपी का सिंथेसिस होगा। 3 ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बराबर 3 ATP, या आप यूं कहें कि 2 प्रोटॉन के ग्रेडियंट से कितने, 2 प्रोटॉन ग्रेडियंट से 1 ATP बन रहा है। 2 प्रोटॉन ग्रेडियंट के पास जो ऊर्जा है वो 1 ATP बनाने में काम आ रही है। पर चूंकि इस NADH2 के से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले एक पेयर, उससे 6 प्रोटॉन ग्रेडियंट बने। तो 6 प्रोटॉन क्यों बने, क्योंकि 3 जगह एनर्जी रिलीज हो रही है। हर जगह पे जैसे कॉम्प्लेक्स 1 से 2 प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से भी 2 प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 4 से भी 2 प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, और 2 प्रोटॉन लगभग 1 ATP देता है। तो 6 प्रोटॉन कितने देगा, 3 ATP। इसलिए हम कहते हैं कि एक NADH2 जो है उसको 3 ATP के बराबर ऊर्जा देता है। क्लियर। अब हम देखते हैं FADH2। अब FADH2 क्यों देगा 2 ATP, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट कम बनेगा, और यही केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस मतलब यही है कि ऑस्मोसिस मतलब केमिकल ऑस्मोसिस मतलब कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से, वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आ रही है किसके, प्रोटॉन से। अब जब प्रोटॉन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ेगी, और उसके कारण क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है अपने आप में ऊर्जा है, इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पैसिव मींस डाउन इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसको हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस। तो केमिकल ऑस्मोसिस, क्योंकि अपने आप में केमिकल केमिकल पोटेंशियल इसके पास जो है, और ये अपने डाउन इज जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जाएगा तो उस पोटेंशियल से, उस ऊर्जा से ATP बन जाएगा। यही केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। और ये ATP बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। पर ये फॉस्फोराइलेशन, ये ATP सिंथेसिस क्यों हो रहा है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडॉक्स रिएक्शन के कारण। इसलिए इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, NADH2 के। NADH2 के ऑक्सीडेशन से ही तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और उस मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उस ऊर्जा के से ATP बन रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करते हैं FADH2 की, FADH2 क्यों 2 ATP बना रहा है। ठीक है, ये तो हुआ NADH2 का ऑक्सीडेशन। अब दूसरी एक रिड्यूसिंग पावर बन रही है FADH2। Again the same thing, this is complex 1। कंसंट्रेशन प्रोटॉन की कहां अधिक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। अब आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ही है एक्चुअली, और जो कि जहां पर रिड्यूसिंग पावर बनती है FADH2 के फॉर्म में, और जो FADH2 हमेशा कॉम्प्लेक्स 2 के से ही आएगा, कॉम्प्लेक्स 2 में ही रीऑक्सीडाइज होता है। तो जब इसका रीऑक्सीडेशन हुआ FAD में, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ प्रोटॉन कहाँ गया, कोएंजाइम Q के पास। अब कोएंजाइम Q से ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 में, नहीं जाएगा क्योंकि इसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है, तो इसलिए एक एनर्जी तो यहीं खत्म होगी। अब ये कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो जब कोएंजाइम Q से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा तो एनर्जी लिबरेट होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 पे एनर्जी का लिबरेशन अधिक होता है। वह एनर्जी क्या कर रही है, 2 प्रोटॉन को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रही है। कहाँ पर, अंदर की तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से। फिर वो साइटोक्रोम C के पास गया, साइटोक्रोम C से वही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में गया, तो यहाँ पर भी एनर्जी अधिक रिलीज होगी, और वह एनर्जी काम आएगी प्रोटॉन्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ से भी 2 प्रोटॉन्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ अंदर की तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन से मिल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। पर FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, अब आप देखिए उससे टोटल प्रोटॉन ग्रेडियंट कितना बन रहा है, 4। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 तक तो जाता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो सीधा कोएंजाइम Q को दे रहा है, इसलिए यहां कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। एनर्जी सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 और 4 पर रिलीज हो रही है। इस कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट
NADH2 की तुलना में कम बनेगा। अब जब 4 प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है तो 4 प्रोटॉन जब बाहर आएंगे ATP सिंथेस से 4 प्रोटॉन, तो वो 2 ATP का सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन जो है वो 1 ATP बनाते हैं, तो 4 प्रोटॉन कितने बनाएंगे? 2 ATP। इसलिए कहते हैं कि एक FADH2 जो है वह 2 ATP के बराबर की ऊर्जा देता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। एंड केमियोस्मोसिस मतलब द ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वी कैन से द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन ग्रेड प्रोटॉन्स एक्चुअली इज यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, क्योंकि इसका जो ऑस्मोसिस हो रहा है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उससे ATP सिंथेसिस हो रहा है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों डेवलप हुआ? एनर्जी जो रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के कारण, उससे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, P/O रेशियो, यहां देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और ये ATP का जो सिंथेसिस है, ये एक साथ हो रहे हैं। मतलब एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और साथ में ATP का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए अपन कहते हैं द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड फॉस्फोराइलेशन आर कपल्ड, दोनों जुड़े हुए हैं। द इलेक्ट्रॉन फ्लो, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर कपल्ड प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट करिए इसको। The electron transport and oxidative phosphorylation are coupled process। मतलब दोनों साथ साथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी ATP सिंथेसिस होगी, और दोनों साथ हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं। अब बात करना चाह रहा हूँ मैं इनके P/O रेशियो की, जो कि एक्चुअली वो कि कौन सा रिड्यूसिंग पावर कितनी ATP बनाता है। P/O रेशियो मतलब एक्चुअली कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंज्यूम होते हैं जब एक ऑक्सीजन एटम रिड्यूस होगा, है ना। नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक phosphates, number of molecules of inorganic phosphate consumed for, or number of inorganic phosphate consumed for synthesis of one molecule of ATP for every atom of oxygen। कि जब एक एटम ऑक्सीजन एटम रिड्यूस होगी तो कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके ATP बना रहे हैं। मान लिया कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंज्यूम हो रहा तो एक ATP बनेगा, अगर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंज्यूम हो रहे तो 2 ATP बनेंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम जब रिड्यूस होगा तो उससे कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्चुअली कंज्यूम हो रहे हैं। या अपन कहें P/O रेशियो को इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है, number of molecules of ATP synthesized per pair of
electrons transported through इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। या अपन सीधी सी भाषा में कहें पी बाई ओ रेशियो का मतलब कि जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्लो करेगा तो कितना, जैसे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ NADH2 है, इससे दो एक पेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ये कहाँ तक जाएगा, ऑक्सीजन तक। तो जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस एक पेयर से कितना ATP बन रहा है वो P बाई O रेशियो जानते हैं। अब अपन जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जब NADH2 से एक पेयर इलेक्ट्रॉन रन करेगा तो 3 ATP बनते हैं। तो कितना बनता है, 3 ATP। तो जब हम बात करें P बाई O रेशियो की, खासकर NADH2 के बारे में, तो वह क्या है, 3 ATP। कितना हो गया, 3। जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो 3 ATP बनेगा। पर यही हम बात करें P बाई O रेशियो की FADH2 के लिए, तो वो है 2 ATP। कारण आपको पता है, यू ऑल नो द रीजन वेरी वेल, बिकॉज जब NADH2 से इलेक्ट्रॉन रन करेगा तो 3 कॉम्प्लेक्सेस से जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1, 3rd और 4th, 3 जगह एनर्जी लिबरेट करेगा, इसलिए 6 प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, इसलिए 3 ATP बन रहा है। जबकि कॉम्प्लेक्स FADH2 सीधा कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन देगा, तो कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास हो रहा है, तो वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3rd और कॉम्प्लेक्स 4th से जाएगा, तो 2 जगह पे ही एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए 4 प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, इसलिए 2 ATP। तो you can understand the concept of P by O ratio, and you now the concept behind the production of 3 ATP by 1 NADH2 and 2 ATP by 1 FADH2. I think it is clear to you now. Now energetics of this NADH2 molecule, हम ये देखते हैं कि इस NADH2 मॉलिक्यूल से कितना फ्री, जब NADH2 से ऑक्सीजन हो रही है, पूरी रिएक्शन क्या है कि NADH2 प्लस 3 ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू NAD प्लस 3 ATP प्लस अ वाटर मॉलिक्यूल जो भी है ना। ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि NADH2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास, और सीक्वेंस पे अलग कंपोनेंट्स है इसके अंदर। तो उस कारण क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो ATP सिंथेसिस में काम आ रही है। तो ये देखा गया है कि इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो चेंज आ रहा है इस रिएक्शन का, वो है -57 किलो कैलोरी पर मोल। कितना है, -57 किलो कैलोरी की। एक NADH2 मॉलिक्यूल जब NAD में कन्वर्ट होता है तो, और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो लगभग -57 किलो कैलोरी, क्योंकि आप जानते हो कि NADH2 का जो E0 है लगभग -0.32 है, और FADH2 का आप ध्यान रखना, FADH2 का पोटेंशियल NADH2 से अधिक है, इसका E0 है -0.22 वोल्ट है, और ऑक्सीजन का कितना है, प्लस 0.83 वोल्ट के आसपास है। पर चूंकि आप जानते हैं कि एक NADH2 मॉलिक्यूल से जब NAD बना और रिएक्शन में एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, -57 किलो कैलोरी एनर्जी, तो मतलब वो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब इसी एनर्जी से तो ATP बन रहे हैं, पर एक NADH2 से कितने ATP बन रहे हैं, एक NADH2 से ATP बन रहे हैं 3। और ATP सिंथेसिस की जब आप एनर्जेटिक्स देखते हैं तो ये तो ऑब्वियसली माइनस है, डेल्टा जी नेगेटिव, इट मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पर ATP सिंथेसिस को आप देखेंगे तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू ATP। तो इसका जो डेल्टा जी आता है, आप यू नो इट वेरी वेल, इट इज प्लस 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो कुल मिलाकर के 3 ATP पास कितनी ऊर्जा हुई, एक ATP के पास अगर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो 3 ATP के पास होगी 3 × 7.3, जो कि हो जाएगा लगभग 21.9 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब स्पष्ट है
कि ऊर्जा तो रिलीज हो रही है -57 के आसपास और एटीपी बन रहे हैं कितनी, सिर्फ 21 किलो कैलोरी के आसपास। तो एफिशिएंसी देखें हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, मैं अपन यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितनी है, कि वास्तविकता में कितनी ऊर्जा एटीपी सिंथेसिस में काम आ रही है। चूंकि NADH2 की वाली जो डेल्टा G है -57 किलो कैलोरी है पर मोल, और जबकि 3 ATP का कितना बन रहा है 21.9, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 21.9 प्लस 100 अपॉन 57, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे एक 21.9 इंटू 100 अपॉन 57, कुल ऊर्जा रिलीज हुई 57, और उस ऊर्जा में से इतनी ऊर्जा काम आ रही है एटीपी सिंथेसिस में, मतलब इसका मतलब बाकी ऊर्जा काम नहीं आ रही है, तो ये आ रहा है 42% के आसपास। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से NADH के ऑक्सीडेशन से जितनी एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के में, उसमें से मात्र 42% ऊर्जा ही एटीपी सिंथेसिस में काम आ रही है। सो कुल ऊर्जा का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का ओनली 42% पार्ट इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इट मीन्स द 58% एनर्जी जो एनर्जी है इट इज लॉस्ट or it is released in form of heat which is called as low quality energy, जो कि लो क्वालिटी एनर्जी है, इसलिए हीट लिबरेशन भी होता है, कुछ थर्मोजेनेसिस भी हो जाता है। ठीक है, कुछ इनहिबिटर्स भी आप ध्यान रखिए, खास करके तो ये आपने देखा कि किस तरीके से इसकी एफिशिएंसी जो है वो अलग होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ इनहिबिटर्स के नाम आप नोट कर लीजिए, अलग अलग कॉम्प्लेक्स के हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। तो कुछ इनहिबिटर्स हैं, उनके नाम आप नोट कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 का है एमाइटल, ये इसके इनहिबिटर्स हैं। रोटिनॉन, ये एक फंगल टॉक्सिन है। पियर्सिडिन ए, इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स 1 है और कॉम्प्लेक्स 3 है उसका ब्रिटिश एंटील्यूसाइट, एंटीमाइसिन ए, कॉम्प्लेक्स 4 का आप वेल नोन एग्जांपल साइनाइड, एजाइड, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिटर्स हैं। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिए अलग अलग, है ना। साइटोक्रोम C पर्टिकुलरली, जैसे ये जो इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नॉट रिलीज इट मींस देयर विल बी नो एटीपी सिंथेसिस, और एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल विल डिप्राइव्ड फ्रॉम एटीपी और एनर्जी। नाउ चूंकि हम जानते हैं या हमने अभी स्टडी किया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और जो एटीपी का सिंथेसिस है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये एक कपल्ड प्रोसेस है, बट कभी कभी अनकपलिंग भी हो जाती है, अनकपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
व्हाट हैपेंस, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, मतलब NaDH2 से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ऑक्सीजन तक जा रहा है और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, पर एटीपी सिंथेसिस नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं अनकपलिंग। इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन तक पहुंचा, वाटर बन गया, पर जो उसने एनर्जी भी रिलीज कर दी, पर वह एनर्जी जो कि 42% एटीपी बना रही थी, अब वो 42% भी एटीपी नहीं बन रहा, मतलब बिल्कुल भी एटीपी नहीं बन रहा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अनकपलिंग। और ये नेचुरली होती है। कैसे, मतलब इसका उदाहरण आप ये समझिए, कि सपोज दिस इज एटीपी सिंथेस, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहां से NaDH2 है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है इधर, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है, यहां अलग कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन चला गया और अल्टीमेटली वाटर बना। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बट यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप होना था वो नहीं हुआ। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप नहीं हुआ तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हुआ। इस प्रोसेस को हम कहेंगे अनकपलिंग। और ऐसा देखा गया है, कुछ नेचुरल कुछ अनकपलर्स है। अनकपलर्स मतलब वो ऐसे सब्सटेंसेस जो अनकपलिंग कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो को तो हो जाए पर एटीपी सिंथेसिस ना होने दे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम अनकपलर्स कहते हैं। जैसे एक वाइडली स्टडीड है जिसका नाम है 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल। ये जो अनकपलर्स, इनको प्रोटॉन आयनोफोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स आयनोफोर्स। मतलब प्रोटॉन्स आयन को आसानी से प्रोटॉन आयंस को आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करा देते हैं, उनको कहते हैं प्रोटॉन आयनोफोर्स कहा जाता है। ये करते हैं क्या? अब जैसे हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ प्रोटॉन्स का, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 से और कॉम्प्लेक्स 4 से। पर ये जो अनकपलर्स है, जैसे मान लिया ये येलो चौक से बता रहा हूं कि ये एक अनकपलर है। अनकपलर बाइंड हो जाते हैं, दे हैज एफिनिटी विद प्रोटॉन्स। ठीक है। और ये अनकपलर जो है दे आर मेम्ब्रेन परमिएबल। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ ले आएंगे इस तरीके से, 2 प्रोटॉन्स प्लस दैट पर्टिकुलर अनकपलर। तो ये अनकपलर इन सबको प्रोटॉन्स को पुनः इधर ले आएंगे इसी तरीके से। तो जब अनकपलर्स क्या करेंगे, आयनोफोर्स मतलब आयन को पास कराने वाले, प्रोटॉन आयनोफोर। और आयनोफोर, प्रोटॉन आयनोफोर मतलब प्रोटॉन को मेम्ब्रेन क्रॉस कराने वाले, तो उनको कह रहे हैं आयनोफोर, है ना। और यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। ये मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ देगा। अब अल्टीमेटली ये इनको मैट्रिक्स की तरफ ले गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप नहीं हुआ तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हुआ, तो जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी जो ऊर्जा रिलीज हुई, एनर्जी, द होल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। The all energy, the whole amount of energy which is released by the electron flow is now released in the form of heat. जबकि पहले 42% तो एटीपी बन रहा था, में काम आ रही थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब वो हीट क्या कर रही है, बॉडी को गर्म रखती है, वार्म रखती है। और नेचुरली भी अनकपलिंग होता है। कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जहां पर नेचुरल अनकपलिंग होती है और वहां जरूरत है, ताकि क्या है कि उससे शरीर के तापमान को
मेंटेन रखा जा सके। खास करके हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं या ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ही ठंडे इलाकों में रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं, तो उनके गले के आसपास ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होता है ना। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर अनकपलिंग होती है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैटी एसिड्स है, जब उसका वो बर्न होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन से जो रिड्यूसिंग पावर जनरेट होती है, या जो एसिटिल कोएंजाइम में बनते हैं, वो एसिटिल कोएंजाइम में से जो रिड्यूसिंग पावर जनरेट होती है NADH2 FADH2, वो इस तरीके से फ्लो करेगी। और पर उनके फ्लो से ATP नहीं बनेगा, उससे क्या होगा, सीधा सीधा हीट रिलीज हो रही है। तो नेचुरली ये कहाँ हो रहा है, और हाइबरनेटिंग एनिमल्स, हाइबरनेटिंग मतलब जो ठंडे समय में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, पोलर एनिमल्स, इवन जो नए बच्चे जो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें भी होता है, ह्यूमन बेबीज में, उनमें जो पोलर एनिमल्स जो होते हैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है, और वो कहाँ जमा होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में। सो वहां पर जो फैट है, वहां पे जो फैटी एसिड है, वो बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम में बनाएगा, और एसिटिल कोएंजाइम में से जो TCA साइकिल होगा, उसके माध्यम से जो NADH2 या FADH2 बनेंगे, वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अनकपलिंग होगी, अनकपलिंग, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हीट प्रोडक्शन होगा। और हीट प्रोडक्शन को कह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसको कहा जाता है थर्मोजेनेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मोजेनेसिस। और वो थर्मोजेनेसिस उनके शरीर को गर्म रखती है ऐसे ठंडे प्रदेशों में। तो ये आवश्यक है, ये जरूरी है। नए बच्चे, कुछ जैसे जो बच्चे नए पैदा होते हैं, उनमें भी इस तरह की चीजें होती है कि वहां पर उस समय उनको ATP प्रोडक्शन से ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी होता है। सो इट इज एक्चुअली नॉन शिवरिंग टाइप ऑफ थर्मोजेनेसिस, है ना। एंड द कुछ नेचुरल अनकपलर्स हैं, जैसे कि थर्मोजेनिन प्रोटीन है, थर्मोजेनिन। इट इज अ प्रोटीन जो कि उनकी एडिपोसाइट्स जो सेल्स हैं, उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या काम कर रहे हैं, प्रोटॉन आयनोफोर का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनने देंगे। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो ATP सिंथेसिस नहीं होगा, अनकपलिंग हो जाएगी, और सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट होगी, जो उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. We had discussed this topic in a very detailed aspect. What is biological oxidation? What is electron transport chain, what are actually redox pair, what is redox potential, and how electron is flow from a low redox potential molecule to high redox potential molecule, and how the components of electron transport chains are arranged. What is the direction of flow of electron, that is from when this electron is contributed by NADH or FADH. From NADH directly contribute to FMN, that is complex 1, and then complex 2, complex 3 and complex 4, and how the energy is released during the flow of electrons. Large amount of energy released when the electrons is provided by NADH2, and a small amount of energy released when it is provided by FADH2. Okay? And the reason I had mentioned, and you had studied the reason particularly, I don't want to discuss it again, repeat it again. So due to that energy released during the electron flow, a proton gradient is developed inside the inner mitochondrial membrane, and that proton gradient is responsible for the synthesis of
ATP, which is known as oxidative phosphorylation. We had studied about P/P:2O ratio, and according to P/O ratio, a single NADH2 is responsible for the synthesis of 3 ATP molecules, and a molecule of FADH2 is responsible for the synthesis of 2 ATP molecule as per their P/P:2O ratio. And the process of electron flow and ATP synthesis is actually coupled in almost cells, but sometimes uncoupling also occurs, and during uncoupling, electron actually flows through electron transport chain and reduces oxygen, but the proton gradient is not formed, because there are some proton ionophores which actually diffuses proton back towards mitochondrial matrix. जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप होना चाहिए था उसको तोड़ देते हैं और पुनः प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके चले जाते हैं, जिससे क्या है कि देयर इज नो प्रोटॉन ग्रेडियंट नियर बाय द ATP सिंथेसिस मॉलिक्यूल, एंड देयरफॉर ATP सिंथेसिस इज अनेबल टू सिंथेसाइज ATP. The uncoupling occurs naturally in some organism, and I mentioned like hibernating animals and the polar region animals, even newborn babies, they have brown adipose tissues, and in brown adipose tissues such type of uncoupling occurs. Natural uncouplers are thermogenin, even thyroxine in many cases acts as an uncoupling agent, and therefore the reason for this uncoupling is to produce more and more amount of heat energy, which keeps the body warm. So this was our 5th class of cellular respiration. Now in next class we will start some different topic. Bye.